وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ یہ امت آئی پابند کرنے کہ تُہۍ بنیو امت وسط، معتدل امت بنیو، متعصب تو متشدد مہ بنیو کی۔ امچ مثال دم بہ تۄہہِ، اَسہِ یُس وٕنکٮ۪س سانہِ وادی اندر اکھ طبقہٕ چھُ غیر مقلدین، میں دِژ امہِ برونٛٹھ تہِ کئی مثالیں اور ان کی کتابیں سامنے رکھ کر میں نے مسئلے کو واضح کیا ہے۔ غیر مقلدینن اندر چھُ اکھ مسئلہ زیر بحث گۄڈٕ پٮ۪ٹھ روٗدمُت کہ تقلید کریں تم مسائل یمن ہن صراحت قرآن و سنتس اندر وضاحتن چھنہ کینٛہہ، یا تم مسائل یمن متعلق روایات تو نصوص پانوی متعارض چھُ، اور تعارض ختم کرنے خاطر یس دلیل انسانس درکار یا کانٛہہ مسئلہ چھُ تیُتھ آسان یتھ متعلق احادیث الگ الگ آسان، یہ چھُنہٕ واضحی گژھان کہ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ عمل کرٕنۍ کتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ عمل کرٕنۍ، یعنی کہ منسوخ کُس چھُ تہٕ ناسخ کُس چھُ، راجع کیاہ چھُ مرجوع کیاہ چھُ، مطلق تو مقیدس اندر مطلب مطلق تھونا مطلقس پٮ۪ٹھٕے کِنہٕ مقید کرہون، مقیدٕچ قٲد ژٹوا کہ سُہ بناوہون مطلق۔ تو تقلید چھِ اتنی مسائلن اندر ضرورت پیوان کہ یس انسان شریعت کن بنیادی مسائلن اندر اتھن مسائلن اندر ہیکہِ پانہٕ زٲنِتھ پرزنٲیِتھ، یمن مسائلن اندر چھُ سُہ شریعت کس کٲنٛسہِ مٲہرس کُن رجوع کران، اتھ چھُ ونان بہرحال تقلید۔ پتہٕ چھِ تقلیدس الگ قسم، تقلید مطلق، تقلید شخصی۔ ایتس کالس اس غیر مقلدینن ہُنٛد اکھ طبقہٕ چھُ وٕچھان، تِم چھِ تقلیدس ہیرِ پٮ۪ٹھ بۄن تامٕے انکار کران۔ مثلاً یہ چھِ مےٚ کتاب برونٛٹھ کَنۍ، کتاب چھُ ناو اصلی اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام کیا ہے، اور یہ کتاب چھِ چھپیمٕژ ادارے دعوت الاسلام ممبئی، اور یمو چھُ اتھ بۄنہٕ کَنۍ لیوکھمُت ییٚتھن کتاب ملنے کے پتے، یہ کتہِ ہیٚکہِ تۄہہِ یہ کتاب مِلِتھ۔ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ یمو لیوکھمُت ییٚتہِ سانہِ وادی اندر جموں کشمیر دارالمعارف بٹھنڈی بازر، یہ چھُ اکھ یہ سا یہ گو بمبئی نمبر، یہ ام پتہ لیوکھمُت یمو مکتب مسلم بربرشاہ سری نگر کشمیر۔ تو ییٚتہِ میلہِ تۄہہِ یہ کتاب اتھ جایہِ ابو الاقبال سلفی، یہ چھُ صف نمبر 143 پٮ۪ٹھ لیکھان تقلید گمراہی کی جڑ ہے، تقلید گمراہی کی جڑ ہے، یعنی کہ تقلید کرٕنۍ چھِ، یُس انسان گمراہ چھُ بوجہ تقلید، تٔمِس چھُ گمراہی ہُنٛد اصل بنیادی وجہ کہ سُہ چھُ مقلد۔ تو اہندِ اصول اعتبار یہ تہِ چھُ غیر مقلد بزامہِ یہ اہل دِس عالم، یم چھِ تقلیدس کلیتن انکار کران۔ بے طرف چھُ حافظ زبیر علی زائی صٲب یمو انتقال کوٚرمُت چھُ، یمو چھُ مستقل کتابیں لیچھمٕژ دین میں تقلید کا مسئلہ۔ حالانکہ اگر یہ کتاب بصیرت سان پڑھو، یہ کتاب چھُ اہندس نظریس واریاہن جایَن مخٲلف گژھان۔ بعض جایَن چھِ یِم لیکھان کہ تقلید کرٕنۍ چھِ بدعت، اور بعض جایَن چھِ یِم تقلیدس لیکھان واجب۔ خیر اگر یہ کتاب بصیرت سان پڑھو، لیکن ییٚمِس انسانس پٔٹ آسہِ أچھن پٮ۪ٹھ، بہرحال تِہُنٛد مسلہٕ چھُ الگ۔ تو ترٛیٚیِم کتاب چھِ یہِ تاریخ اہل حدیث مولانا ابراہیم سیالکوٹی صٲب، یمو چھِ کتاب لیچھمٕژ، اتھ منٛز چھِ یِمو فصلِ پنجم بحث تقلید، اتھ تقلید کس مسلس پٮ۪ٹھ چھِ یِم زبردست تفصیلی بحث کران۔ شاید کہ چھِ یِم تی یژھان بیان کرُن کہ یُس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان کوٚرمُت کہ تِم چھِ تقلیدس تہِ مانان، تقلیدس چھِ تِمو الگ الگ قسم بیان کٔرمٕتۍ، کُنہِ ساتہٕ چھِ تقلید فرض بنان، کُنہِ ساتہٕ چھِ تقلید کرٕنۍ واجب بنان، کُنہِ ساتہٕ چھِ تقلید کرٕنۍ مستحب بنان، اور کُنہِ ساتہٕ چھِ تقلید کرٕنۍ حرام تہِ بنان۔ اور پتہٕ چھِ یِمو برونٛٹھ کُن اکھ تبصر کوٚرمُت اتھ پٮ۪ٹھ، برونٛٹھ کُن عنوان پنجم اہل حدیث کا مسلک مبین، اہل حدیث کا مسلک مبین، یاد تھیو۔ ابو الاقبال سلفی چھُ لیکھان تقلید ہر گمراہی کی جڑ ہے۔ حافظ زبیر علی زائی صٲب چھُ لیکھان دین میں تقلید کا مسئلہ کہ تقلید چھِ بدعت، یعنی کہ یُس مقلد آسہِ سُہ چھُ گمراہ، یُس مقلد آسہِ سُہ چھُ بدعتی۔ یم کیا چھِ لیکھان، کیا ہمارے حنفی بھائی ہم اہل حدیثوں کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم تقلید سے مطلقاً انکار کرتے ہیں اور عوام کو تعلیم کرتے ہیں کہ وہ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نہ ملنے کے
और खुद भी कुतुब मुतदाविला मशहूरा में इल्मी काबिलियत न रखने के अकवाल आइमा को माअज़ल्लाह ठुकरा दिया करे और मादर पिदर आज़ाद होकर जो चाहे सो किया करे। अगर उनका यही ख्याल है तो हम साफ अल्फाज में ऐलान करते हैं कि उन्होंने हमारा मसलक समझने में ताक़ीक़ से काम नहीं लिया है। ब्रोट कुन पम तकलीदस करन 4-5 किस्म। मौलाना इब्राहिम सियालकोटी साहबो यह बहस तकरीबन 5-8 सफ़ातन पे तफसीलन बयान कर और अम ब्रो कैंचन शाइन हवाशन अंदर बयान कर गो तकलीद तारीफ बयान कर पे जरूरत बयान कर अबुल इकबाल सलफी वन कि तकलीद हसा मुतलकन गुमराही तो उनके फतवा के एतबार से इब्राहिम सियालकोटी साहब या इहदिस नजरियस मानन वल इब्राहिम सियालकोटी साहब पे पनस अहले हदीस वन और ये इहदिस नजरियस मानन वल तिम पे पनस अहले हदीस वन। तो अबुल इकबाल सलफी जाली इस्लाम क्या है, असली इस्लाम क्या है, उनके नजरिए के एतबार से इब्राहिम सियालकोटी साहब और उनके मानने वाले सब गुमराह है, क्योंकि ये तकलीद के कायल है, गर्ज तकलीद मुतलक हो या तकलीद शख्सी। और हाफिज जुबैर अली जाय साहब ब्याक रहम कोरमुत कि यमो वोनमुत कि तकलीद हसा बिदत और तेल अम नजरिया एतबार इब्राहिम सियालकोटी साहब और इनके मानने वाले अहले हदीस वो बिदती हो जाएंगे। और बिदतिस मुतलिक बार बार वन कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है, बिदती बनना गुमराह होना है और हर मुब्तदी सुन ठिकाने से जहन्नम। तो इन 2 करम फरमा के तहकीक और उसूल के एतबार से इब्राहिम सियालकोटी साहब और उनके मानने वाले अलायाज़ु बिल्लाह गुमराह भी है, बिदती भी है और जहन्नम में जाने वाले भी है। यह है ये। और अगर तारीख अहले हदीस इब्राहिम सियालकोटी साहब नजरिए पेश करो कि इम वन कि मुतलक तकलीद मानन, यानी कि तकलीदुक जिन्स मानन ये कि हम जिन्स से इनकार कर, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये अहले हदीसन हुन नजरिया यह कि हम तकलीद को मानते हैं, बल्कि कभी कभार वाजिब भी है, कभी कभार फर्ज भी है। अमुक मतलब यम ज अहबाब और इहन मानन वोल तकलीदस मुनकिर, तो वह अहले हदीस नहीं हुए। ये तकलीद को मुतलकन बिदत कहते हैं, गुमराही कहते हैं, इसका मतलब ये अहले हदीस नहीं है। और जो इनके मानने वाले हैं, इस किताब के मानने वाले, वो अहले हदीस ना रहे और यम तकलीदस बिदत वनन। इब्राहिम सियालकोटी साहब फरमान तकलीद जरूरत बल्कि वाजिब भी है, तो ये फर्ज को छोड़ने वाले हुए, वाजिब को छोड़ने वाले हुए, सुन्नत को छोड़ने वाले हुए, मुस्तहब को छोड़ने वाले हुए। जो फर्ज को छोड़ने वाला हुआ उसका अंजाम क्या है, ये प्रिस्युत गैर मुकल्लिद उलमान हंदिस दारुल इफ्तास करो सवाल। युस वाजिबस तरक करी बेदी तमिज दावत, युस फर्जस तरक करी बेदी तमिज दावत, युस सुन्नतस तरक करी बेदी तमिज दावत, युस मुस्तहबस त्रावी बेदी तमिज दावत, वो शख्स वजाहतन और ऐलानिया फासिक है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये इनकी बात चल रही है, इनकी आपस की खाना तलाशी चल रही है। तेल क्या मसलो छु गैर मुकल्लिदीन बल्कि वनो तिम हजरात यम मोतदिल छु, उनके रफल दिन के साथ कोई जंग नहीं है, वह आमिल बिलजहर के कायल है, हाँ वो सीने पे हाथ बांधने के कायल है। लेकिन सल्फ सालिहीन तो मुकल्लिदीन तुम गुमराह लेखन बवजह तकलीद के तिमन से क्या इख्तिलाफ करो। हाँ उनके साथ ऐसा कैसे इख्तिलाफ किया जा सकता है। इख्तिलाफ की बुनियादी वजह कि ये अपने इस नजरिए के एतबार से सल्फ़े सालिहीन से लेकर आज तक या कल तक जो आने वाले मुसलमान अकाबिरीन हैं उन पर गुमराही का फतवा ये लोग दे रहे हैं। पश्चिम अवाम बदल चीज वन कि औलिया किरामन एहतराम करन, ठीक छु तिहिंद अशआर मिंबरस पे पढ़न, लेकिन ये गोड़े सू बवजह तकलीद गुमराह मोनुत, तो अशआर पढ़ना तो उम्मत को गुमराह करना हुआ। ये तो बात है ना, वाज़े बात ये है। तो छु दपन औलिया किरामन एहतराम करन, ठीक बात है, ये जुबान तक महदूद है। लेकिन ये प्रिसन कि फलाइन वली ओस फलाइन सन मुकल्लिद, फलाइन वली ओस फलाइन सन मुकल्लिद, बवजह तकलीद के हाफिज जुबैर अली ज़ाई साहब उनको बिदती लिखते हैं और अबुल इकबाल सल्फी उनको गुमराह लिखते हैं। वन पे तिम अवामस धोखा दिवन ना यमो कत लिख शेखुल आलम सु नाव सह बिदती अलाइजुबिल्ला। अरे उसूल तो आपने लिखा कि युस मुकल्लिद आए वो गुमराह है। जब आपने जिन्स बयान किया, उस जिन्स के तहत इतनी सारे असनाफ और हाँ इतने सारे अनवा है तिम पानी पानी दाखिल गसन। वन छु तुम इजमालस मन तमामन वन गुमराह, तफसीलस में छू तुम वन, उसकी वजह यह कि आपको जूते लगने हैं। लिहाजा इन 3 किताबों को अगर इस उन्वान पर और भी देखा जाए कि ये मसला बड़ा कठिन है। अमे मूजूब अहल सुन्नत वल जमात नजरिया ये कि तकलीदुक युस दायरा वो शरीयत के कुछ चंद महदूद मसाइल तक महदूद है। तिम मसाइल शरीयत यम अकायद के मसाइल
यम कुरान सुन्नतन वजाहतन तो सराहतन बयान कर्म तथ मन तकलीदी जरूरत की बिलखुसूस उलमा तबकस रूद अवामुक मसल तिमन बिचारन पई कि कुरान में अलिफ क्या है और बा क्या है, उनका मसला अलग है। उनको समझाने के लिए इफ़हाम व तफ़हीम के लिए उनका मसला अलग है। और शरीयत तिम मसल तो अहकामात यम कुरान सुन्नतन वजाहतन सराहतन बयान कर, चाहे तुहद हलाल आसन या हराम आसन, उनमें तकलीफ का कोई नजरिया है ही नहीं। लेकिन शरीयत के वो मसाइल जिनकी ज़रूरत उम्मत को बसूरत शरीयत के महसूस हो रही है और तमें ज़रूरत पेवन, तिम चुन कुरान सुन्नत में सराहतन मौजूद है लेकिन उसूल के दर्जे में मौजूद है। उन उसूल को निकालने वाले फुकाहा होते हैं, उन्हीं के उसूल की पैरोकारी करने का नाम होता है तकलीद। एमनिश का महफूज है, इसकी जरूरत हर एक को पड़ती, चाहे आलिम हो या गैर आलिम। लेकिन इमो युस उम्मतस नजरे दित कि हर कोई मुजतहिद बना बैठे, यमिस 10 हज पाई आसो वो मुजतहिद बना बैठे, तो इनके नजरे के एतबार से मुकल्लिदीन गुमराह है, इनके नजरे के एतबार से मुकल्लिदीन बिदती है और हराम करने वाले हैं, और इनके नजरे के एतबार से मुकल्लिदीन गुमराह नहीं है बल्कि तकलीद के इनकार करने वाले गुमराह है। अब सियालकुटी साहिब या उनके मानने वाले को अहले हदीस कहो या गुमराह कहो, आपकी मर्जी। दीन में तकलीद का मसला जुबैर अली ज़ई साहब को तकलीद के इनकार करने की वजह से अहले हदीस मसला का इनकार करने वाला कहो कि ये अहले हदीस नहीं है बल्कि गुमराह है, आपकी मर्जी। या अबुल इकबाल सलफी की बात मानो कि तकलीद को मुतलकन गुमराही करार दो, और वो जो दीगर गैर मुकल्लिदीन उलमा या दीगर ऐसे भी मौजूद है कि जो तकलीद को मानते हैं, उनको गुमराह कहो, आपकी मर्जी। आपस में एक दूसरे को गुमराह कहते रहो, काफिर कहते रहो, क्या कहते रहो, यह आपकी अंदरूनी बात है, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये तुम पन मसल हल गसन क्या लगन गमित फन है हुई गुमराह। आप बचाओ, आप बताओ कि तकलीद के मसले पर आपके 2 उलमा का इत्तेफाक तो दिखाओ। बल्कि गैर मुकल्लिद एक आलिम ने खुद ये कहा है कि अहले हदीस मसलक नाम है ऐसे मसलक का कि इसी एक मसले पर 2 अहले हदीस उलमा का इत्तेफाक नहीं हो सकता है, अगर होता है जायज़ जब नाजायज़। पहला अपना मसला हल करो, बाद में जो है किसी और की बिगड़ी बनाओ। लिहाजा मसला समझो, वल्लाह मैं तासुबन नहीं कह रहा हूं, ये तहकीक के दर्जे में ये बात सुनो और समझो और पढ़ो। बाकी हम इसके मुकल्लफ नहीं है कि सारी कैसन हनफी बने, सारी कैसन शाफी बने। इस्लाम के दायरे में रहो, मसलन मुझ इख्तिलाफ, लेकिन इख्तिलाफ को इख्तिलाफ के दर्जे में रखो। युस इख्तिलाफ में गुमराही हो इख्तिलाफ के, उसमें आप गुमराही कहां से दाखिल करते हो? युस इख्तिलाफ में ईमान और कुफ्र इख्तिलाफ क्या तस मज क्या पन्निस मध्य मुकाबलस काफिर तो बेदीन ना। जो इख्तिलाफ इज्तिहाद का इख्तिलाफ है उसमें एक तरफ एक नीकी है, दूसरी तरफ 2 नीकियां है, ये छुई ना, लिहाजा गुमराही हो इख्तिलाफ। लिहाजा मसला समझो।